OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. In the last class of math, nature of roots में हम लोगों ने स्पेशल केस जो डिस्कस किया था कि इक्वल रूट्स की कंडीशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का है और हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम मोर क्वेश्चन. चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं. If the roots of the equation one plus m square into x square plus 2cmx plus c square minus a square is equal to 0 are equal, then prove that c square is equal to a square into 1 plus m square. तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है. द क्वेश्चन इज इस क्वाड्रेटिक की रूट्स इक्वल है तो हमें प्रूव करनी है ये कंडीशन. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with what is the standard quadratic equation? Ax square plus bx plus c. So what is a coefficient of x square? It's a 1 plus m square. And what's a b? B is 2cm and c, it's a capital C. We are saying it is capital C, c square minus a square. Since roots are equal, in the question it is saying roots are equal. What is condition if roots are equal? Yes, this d is equal to 0 means b square minus 4ac is 0. Put the values of a, b, c. b is 2cm square minus 4a. What is a? 1 plus m square. a is 1 plus m square into c square minus a square is 0. We can take 4 common, 4c square m square, and this is 4. We can take 4 common, c square m square minus, multiply the two brackets, 1 into c square, and outside the bracket there is minus sign. You will write here minus c square, 1 into minus a square, and minus sign is there, plus a square. We have taken 4 common, confused nahi hona hai. We have taken 4 common. Now multiply m square, c square m square, negative sign is there, minus c square m square, minus a square m square, and minus sign is there, plus a square m square is 0. Divide 4 to the right hand side, 0 by 4, it's a 0, and c square m square will get cancelled. Therefore, minus c square plus a square m square is 0. Bring the c square next side. C square is equal to a square plus a square m square. We can take a square common. We will get in bracket 1 plus m square. और यही भी प्रूफ भी करना है. चेक इट, चेक कीजिए क्या यही प्रूफ करना है. यस, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. चलिए आपको समझ में आया होगा हाउ टू अप्लाई द कंडीशन इफ द रूट्स आर इक्वल. तो कंडीशन क्या होती है? रूट्स आर इक्वल, डी जीरो, डी इज जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा, इजिली रिजल्ट मिल जाएगा. चलिए अब करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस. Next question is, find the value of P if the roots of the equation px square minus 14x plus 8 is equal to 0. एक मिनट कट कीजिए. हाँ ठीक तो है. Are reciprocal to each other. Roots are reciprocal. Reciprocal number आपको पता है. If the product of two number is 1, the numbers are said to be reciprocal. A into B is 1. Two numbers A and B are reciprocal to each other.
और वी कैन से a इक्वल टू 1/b और b इक्वल टू 1/a। और दूसरा यहां पे है रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो हम लोग ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा, पॉलिनोमियल से ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो जो रिलेशन था जीरोस और कोफिशिएंट्स में, सेम रिलेशन यहां पे होगा। जीरोस की जगह क्या कहेंगे? रूट्स। रूट्स एंड कोफिशिएंट में सेम रिलेशन हो जाएगा। तो लेट द रूट्स बी, जनरली हम रूट्स क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा of the equation. What is the equation given to us? Px square minus 14x plus 8 is equal to 0. This is the equation. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कहते थे, यहां पे सम ऑफ रूट्स कहेंगे, विच इज माइनस बी बाई ए। बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस what is coefficient of x? It's a minus 14 by p, which is 14 by p. And product of zeros की जगह product of roots कहेंगे, which is c by a. c means constant term upon coefficient of x square. Constant term is 8, coefficient of x square is p. Now अभी हम लोग ने कहा कि अगर दो नंबर रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 1। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल। इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, अल्फा इंटू बीटा से ही पी की वैल्यू निकल आएगी। सिंस रूट्स आर रेसिप्रोकल, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, रेसिप्रोकल नंबर का प्रोडक्ट 1। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 8 बाई पी इज 1। तो p की वैल्यू आ गई 8। तो इट वाज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो रूट्स रेसिप्रोकल है तो हमारी p की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ p इज 8। तो आसान सा कंसेप्ट है। चलिए और भी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर minus 10x plus k is equal to 0 is 6 times of the other. The quadratic equation is 3x square minus 10x plus k is equal to 0. Its roots we are saying alpha beta है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इट्स अ माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 10 बाई 3 विच इज 10 बाई 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट्स अ सी बाई ए मीन्स के बाई 3। ये तो हम लोग ने अल्फा बीटा रूट कहते ही सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग वन रूट इज द 6 टाइम ऑफ अदर। इधर यू कैन टेक अल्फा इक्वल टू 6 बीटा और यू कैन टेक बीटा इक्वल टू 6 अल्फा, कोई इशू नहीं है। सिंस वन रूट is 6 times of other, or we are saying beta is 6 times alpha. So put the value of beta is equal to 6 alpha in the two equations जो ऊपर हमें मिले हैं। तो therefore alpha plus 6 alpha is 10 by 3, 7 alpha is 10 by 3. What is alpha? 10 by 21. And put the value of beta in the second relation, alpha into beta. Beta की जगह 6 alpha is equal to k by 3. This is 6 alpha square is equal to k by 3. अब अल्फा की वैल्यू जो हम लोग ने निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। 6 इंटू 10 बाई 21 स्क्वायर is equal to k by 3. तो दिस इज 6 3 जा 18 इंटू 100 बाई 21 स्क्वायर। नो नीड टू राइट 441, you can also write 21 into 21 is equal to k. k की वैल्यू निकालनी है। now cancel it by 3 6 जा 3 7 जा, again cancel by 3 3 2 जा 3 7 जा। what is the value of k? k is 200 by 49।
This is the answer. See the next question. If minus 5 is the root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0, one unknown is there p, minus 5 root है, root satisfy करती है equation को, satisfy कराएंगे, you will get the value of p. After it is saying the second quadratic equation p into x square plus k is equal to 0 has equal roots. What is the value of k? तो p की वैल्यू निकल चुकी है. फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ p जो ऊपर से निकली थी, और फिर इसमें इक्वल रूट्स की कंडीशन लगा देंगे. व्हाट इज द कंडीशन? d इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. चलिए स्टार्ट करें. सिंस -5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन एंड इट्स रूट इज -5. तो -5 सेटिस्फाई कराइए. 2 इंटू 25 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो 5p इज 5p उधर भेजा, 50 माइनस 15 विच इज 35. 25 टू जा 50, 50 माइनस 15 35. 5p की वैल्यू है, p इज 7. We got the value of p which is 7. Put p is equal to 7 in the second equation. Second equation में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. This is 7. तो you can also write 7x square plus 7x plus k is equal to 0. Comparing it with ax स्क्वायर. किसके साथ कंपेयर करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a is 7, b is also 7, c is k. Now what is condition? Since roots are equal, it is saying, what is condition if roots are equal? d is equal to 0 or b square minus 4ac is 0. Substitute the value of abc. b square 7 square 49 minus 7 into 4 into k is 0. What is the value of k? k is 49 by 7 into 4. 7 7 ja. तो k is 7 by 4 and this is answer. क्या पूछ रहा था? k की वैल्यू if the roots of the second equations are equal. p की वैल्यू हमने फर्स्ट पहले फाइंड कर ली. हमें गिवन था -5 इज द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. सेटिस्फाई कराया, p मिल गया 7, p सब्स्टिट्यूट कर दिया इन द सेकंड इक्वेशन. ओनली द अननोन नाउ इज k. p की वैल्यू पता लग गई, तो एक ही अननोन रह गया k. और उसके लिए हमें क्या कंडीशन गिवन थी? रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, जिसकी कंडीशन होती है d इक्वल टू 0, जिससे हमें k की वैल्यू पता लग गई. तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होते हैं कि इक्वल रूट्स है, एक ही कंडीशन लगाते हैं d इक्वल टू 0. अब हम लोग कुछ करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम. वर्ड्स प्रॉब्लम यानी ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और ये प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में भी आई हुई हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर. इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. क्वेश्चन लैंग्वेज बड़ी सिंपल है. देयर इज अ स्लो ट्रेन एंड अ फास्ट ट्रेन. तो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों कवर कर रही हैं. फास्ट ट्रेन जो है 3 hours लेस लेती है देन द स्लो ट्रेन, और स्लो ट्रेन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर लेस है देन द स्लो ट्रेन, फास्ट ट्रेन. तो दोनों ट्रेन की हमें सेपरेट स्पीड चाहिए. तो लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. Therefore, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन कितनी फास्ट है? 10 किलोमीटर. स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो स्पीड हो गई फास्ट ट्रेन की x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. टू कवर 600 किलोमीटर टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन. टू कवर distance of 600 kilometer time taken by slow train.
क्या टाइम लेगी? डिस्टेंस इज 600, स्पीड इज x, तो टाइम इज स्पीड अपॉन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 600, स्पीड इज x. एंड सेम जब सेम डिस्टेंस जब फास्ट ट्रेन कवर करती है तो कितना टाइम लेगी? टू कवर डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर, टाइम टेकन बाई फास्ट ट्रेन. क्या लेगी फास्ट ट्रेन टाइम? डिस्टेंस सेम है बट स्पीड है x प्लस 10 एंड दीज टाइम्स आर इन आवर्स. अब क्वेश्चन में बोला है फास्ट ट्रेन को 3 आवर लेस लगते हैं, स्लो ट्रेन को 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the time taken by slow train is 3 hours more than the time taken by fast train, means the difference of the two time is 3 hours. So 600 by 6x, 600 by x, this is the time taken by slow train, and 600 by x plus 10, this is the time taken by fast train, and the difference of the time is 3 hours. Now easily you can solve. 600 is common, we will take x plus 10 LCM. Here you will कितना आएगा यहाँ पे? x प्लस 10, दिस इज x 3, x से x कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 200 इंटू 10, तो क्वाड्रेटिक आ गया x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 2000, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0. अब कंसेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का? वी विल यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ माइनस 2000 हुज सम इज 10. अब बताइए क्या हो सकते हैं फैक्टर ऑफ माइनस 2000? प्रोडक्ट माइनस 2000, सम इज 10 प्लस 10. तो जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव, और सम पॉजिटिव चाहिए तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव. तो व्हाट आर द टू फैक्टर्स? 40 एंड 50 तो हमें दिख गया, प्रोडक्ट 2000 होगा, 50 एंड 40. सम हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव के साथ, लेस मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ. तो वी कैन से द फैक्टर्स आर x प्लस 50, x माइनस 40. यहां से दिख गया 50 एंड माइनस 40 आर देयर. Therefore, there are two possible values of x. x is minus 50, which is not possible. Speed negative नहीं हो सकती. x is 40. Therefore, speed of the slow train is 40 km per hour, and the speed of the fast train, which is 10 km per hour faster than it. तो क्या हो जाएगी स्पीड? 50 km. तो ये वाला 50 रिजेक्ट हो रहा है, माइनस 50. 40 is the speed of slow train and 10 km फास्टर है, तो स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इज 50 km per hour. आई होप आप आंसर तो लिख ही सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन होल 7 by 8 hours. दोनों एक साथ ओपन कर दिए गए. टाइम जो लग रहा है पूरे टैंक को भरने में, इट इज 1 होल 7 by 8 hour. लेकिन अगर अलग अलग खोल के टैंक भरा जाए तो जो लॉन्गर डायमीटर का जो टैप है, इट टेक्स 2 hours लेस देन द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर. अगर सेपरेटली अगर ओपन करें तो बड़े डायमीटर वाला जो हमारा टैप होगा वो 2 hours लेस लेगा देन द टाइम टेकन बाय द टैप विद द स्मॉलर डायमीटर. तो हमें बताना है कि अगर ओपन अलग अलग कर दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा. फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम लोग? लेट टाइम taken by tap with a smaller diameter. To fill the tank separately. Be x hours. Therefore, time taken by tap with longer diameter to fill the tank separately.
क्या हो जाएगा, इट इज टेकिंग 2 आवर लेस, तो टाइम क्या हो जाएगा x माइनस 2 आवर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है यहां पे हम लोग लैग कर जाते हैं कंसेप्ट। इफ दोनों टैब एक साथ खोले, मान लीजिए एक 4 आवर में भर रहा है, एक 5 आवर में भर रहा है, अगर दोनों एक साथ ओपन करें तो क्या 9 आवर्स लगेंगे? 4 + 5 आवर्स नहीं ना। इससे अच्छा तो होता अगर 9 आवर्स लगेंगे, तो इससे अच्छा होता कि हम खाली जो 4 आवर्स है उसी टैब को ओपन करें, फास्ट भर रहा है। बट द कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग कि हम टाइम को ऐड कर दें, दोनों को अगर एक साथ ओपन कर रहे हैं तो वी विल नॉट ऐड द टाइम। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? मान लीजिए ये टैंक है, फर्स्ट टैप अगर 5 आवर्स में पूरा इसको भर पा रहा है, 5 आवर्स में पूरा भर पा रहा है, तो इट मींस 1 आवर में इसने 1/5 पार्ट भरा होगा। 1 2 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। दीज आर 5 इक्वल पार्ट्स। हमने 5 इक्वल पार्ट्स में टैंक को डिवाइड कर दिया, तो 1 आवर में उसका 1 पार्ट ही तो भरेगा। सिमिलरली अगर एक टैप 4 आवर में भर रहा है, तो वो 1 आवर में उसका 1/4 पार्ट भरेगा। और दोनों एक साथ ओपन करेंगे तो एक 1/5 पार्ट भरेगा और एक 1/4 पार्ट भरेगा। मींस ये हमारा कैसे डिसाइड हो रहा है 1 आवर में कितना टैंक का पार्ट भरेगा? इट इज डिसाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द टैप। टैप जितना टाइम ले रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 आवर में कितना टाइम, कितना पार्ट फिल कर रहा है। अगर 5 आवर्स में भर रहा है तो इट इज फिलिंग 1/5 पार्ट। अगर 4 आवर में भर रहा है तो इट इज फिलिंग 1/4 पार्ट इन 1 आवर। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी अप्लाई करेंगे। अगर एक टैप x आवर में भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x पार्ट। और दूसरा टैप x माइनस 2 आवर में भर रहा है तो इट विल फिल 1/x माइनस 2 पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। तो यही आपने को लिखना है, पार्ट ऑफ द टैंक टेकन बाई 2 taps in 1 hour separately are, अगर x आवर में भर रहा है तो 1/x एंड x माइनस 2 आवर में भर रहा है तो 1/x माइनस 2 रिस्पेक्टिवली। अलग अलग वो 1/x पार्ट भर रहा है और 1/x माइनस 2 पार्ट भर रहा है, और दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो ये भी 1/x भरेगा, ये 1/x माइनस 2 भरेगा, और दोनों ऐड कर देंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 2। दिस इज द पार्ट विच द 2 टैप फिल इन 1 आवर। ये टैंक का पार्ट वो 1 आवर में भर रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों टैप मिल करके टैंक को भरने में कितना टाइम लगा रहे हैं? 1 होल 7/8, इट मींस 15/8 आवर। 2 taps together can fill the tank in 15/8 hours। तो 1 आवर में कितना भरेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, अगर 5 आवर में भर रहा है तो 1 आवर में 1/5 पार्ट भर रहा है, अगर 15/8 आवर में भर रहा है तो 1 आवर में 1/15/8 पार्ट भरेगा, विच इज 8/15। तो जो 1 आवर में दोनों भर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 8/15, और हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इट इज 1/x प्लस 1/x माइनस 2। इट मींस दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। तो 1/15/8 के इक्विवेलेंट हो गया विच इज 8/15। नाउ टेक एलसीएम, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, एंड क्वाड्रेटिक यू कैन सॉल्व इजिली। x इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस x इज 8/15। दिस इज 2x माइनस 2 एंड 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो x माइनस 1। देखिए 2x माइनस 2 वी कैन टेक 2 कॉमन और 2 से 8 कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, 2 से कैंसिल किया, दिस इज 4/15। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 15x माइनस 15। तो क्वाड्रेटिक इज 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x माइनस 23x एंड दिस इज प्लस 15 इक्वल टू 0। 15 4 जा 60, 60 के दो फैक्टर जिनका सम 23, वेरी इजी, 20 एंड 3। सम क्या चाहिए? नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव। इट मींस बोथ फैक्टर्स क्या होने चाहिए? नेगेटिव। तो बोथ फैक्टर्स विल बी नेगेटिव। 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। आफ्टर इट यहां देखिए
What is common in first two term 4x square minus 20x? We can take 4x common, x minus 5 बचेगा. And the last two terms से we can take minus 3. Again it gives x minus 5 is equal to 0. 4x minus 3 x minus 5 is equal to 0. तो x is 3 by 4 और x is 5. Both are positive. और टाइम दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, बट क्या दोनों ही पॉसिबल आंसर है एक्स के, या कोई वन एक रिजेक्ट होने जाएगा, या वन विल बी रिजेक्टेड? अच्छा, आपको ये अपडेट नॉलेज से बता सकते हैं, अगर एक सिंगल टैप जो टाइम लेगा, चाहे सिंगल टैप जो टाइम लेगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द टाइम जो दोनों टैप एक साथ खोलने पर लेंगे. तो दोनों टैप मिल करके 1 होल 7/8 आवर में भर रहे हैं. 1 आवर से ज्यादा है, 2 आवर से कम है. तो क्या कोई सिंगल टैप 1 आवर से कम टाइम में भर सकता है? तो दिस इज लेस देन 1, तो सिंगल टैप 1 आवर से लेस नहीं ले सकता, तो दिस विल बी कैंसिल्ड. देयरफॉर द x की वैल्यू क्या हो गई? 5. तो x क्या लिया था? द टाइम टेकन बाय द टैप विद द स्मॉलर डायमीटर. तो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप विल टेक 5 आवर्स, और दूसरा टैप जो है 2 आवर्स लेस ले रहा था. इट मीन द सेकंड टैप विल टेक 3 आवर्स. तो टाइम टेकन बाय द टू टैप्स आर 5 आवर एंड 3 आवर. तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी. एंड ये हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम है जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं. ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर भी और क्लासेस और भी क्वेश्चंस लेंगे जो हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, एंड इट आर आस्क्ड इन, और ये हमारी क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं.